Good morning, students. In previous lecture, we have discussed benefits or advantages, or we can say need of international business. So we have covered up till here benefits to firms. So let's start the new topic and very important topic of this chapter, that is mode of entering into international business. Mode of entering means ki when we are going to do international business, there are two types. What are? Export and import. Mainly two types. There are three types of international business, but mainly here the procedure are entered ओनली फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग. जो आपको प्रोसीजर पढ़ने हैं, मेन जो पढ़ना है इंटरनेशनल का, वो है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इंट्री पोर्ट का हम इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इंट्री पोर्ट में क्या होता है, फर्स्ट वी आर परचेज द रॉ मटेरियल और द इनपुट फ्रॉम द country and then manufacture it, convert it into finished goods and then resell it to another country. Means first we will do import and then after finished preparing it to finished goods, then we will do import. Okay. तो फर्स्ट प्रोसीजर इसमें क्या होगा हमारा इंपोर्ट का, देन प्रोसीजर होगा एक्सपोर्ट का. तो वो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही कहीं ना कहीं कवर हो रहा है. तो मेन जो हम प्रोसीजर इसमें पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे आगे हम, वो होगा एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड इम्पोर्ट प्रोसीजर. तो लेट्स स्टार्ट with exporting and importing. You know what is exporting and importing? I think every student know. हम यहाँ तक चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की मीनिंग पता है. नहीं पता है तो एक बार और सुन लीजिए. एक्सपोर्ट मीन्स when we sell the goods and services from our country to another country, means foreign country, then it is export. Import means when we purchase or we buy the foreign goods and services in our country, then it is import. The process of purchasing the goods from the another country is known as importing, and the process of selling goods and services in the foreign from the foreign country to the foreign country, then it is known as exporting. तो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर एक्सपोर्टिंग, इंपोर्ट का प्रोसीजर इंपोर्टिंग. उसी चीज़ को यहाँ हम मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और उसके प्रोसीजर पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सपोर्ट और वी कैन से एक्सपोर्टिंग. Here it is written, the exporting and importing can be done in two ways. Directly means direct और indirect. कह रहे हैं कि एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग दोनों को हम दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. अब आप कहेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है? डायरेक्टली मीन्स कि हम जब किसी बाहर की कंट्री से और बाहर की कंट्री के ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर्स या कंपनी से डायरेक्टली उनके गुड्स वहाँ से परचेज करते हैं, देन इट इज़ डायरेक्टली. एंड व्हेन वी include some middlemen, brokers, with the help of brokers or agents, if we buy the product of another country through agents, middlemen or brokers, then it is indirectly. So here it is saying that कि we can do export or import directly or indirectly. Okay, direct means firm itself approaches in foreign country and completes all the formalities itself. On the other hand, when a firm employs a middleman to perform these formalities, then it is called indirect exporting and importing. So here it is said that कि when a person wants to purchase a good or services from the another country, it is importing. And when that person will do all these formalities, will do all this activities, it is directly. And when we include any person, any agent, any middleman, then it is indirectly. ओके, आई होप कि अब तक जो भी सिंपल लैंग्वेज में हम आपको ये मान के चलते हैं कि जो भी नोट्स या जो भी हम एक्सप्लेनेशन दें वो सिंपल लैंग्वेज में हो, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स हमारे
अच्छे से समझ पाएँ। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ लीजिए कि ये जो लेक्चर है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। इसके बावजूद भी कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, बट लर्न करिए, इसको समझ के चलिए, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लेट्स मूव टूवर्ड्स मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। Export trade refers to selling goods and services produced in the home country to foreign country or across the border. तो वी नो दैट व्हाट इज़ एक्सपोर्ट। तो इसको बार बार समझाने की बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम अपने गुड्स या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दूसरे कंट्री या फॉरेन कंट्री या अक्रॉस द बॉर्डर किसी को सोल्ड करते हैं तो देन इट इज़ एक्सपोर्ट। The seller of such goods and services is known as exporter and buyer is called as importer. जैसे हम एज अ एक्सपोर्ट वर्क कर रहे हैं, मतलब हम अपने गुड्स किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या होंगे? एक्सपोर्टर। और अनदर कंट्री क्या होगी? इम्पोर्टर। इम्पोर्टर क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इम्पोर्टर और हम क्या होंगे? एक्सपोर्टर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ ऑब्जेक्टिव्स या प्रोसीजर जो फर्स्टली हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा एक्सपोर्टिंग, मीन्स एक्सपोर्ट का हम प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग तो अभी हमने देखा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट या एक्सपोर्टिंग। फर्स्ट इट इज टू सेल सरप्लस गुड्स। टू सेल सरप्लस गुड्स में ये कह रहे हैं कि जितना रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इतना हम गुड्स प्रोड्यूस करें कि जितना हमारे फॉरेन कंट्री में हमको उन्हें सोल्ड करना है उससे थोड़ा सा हमें ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमें वेयर हाउस में उसको स्टोर करके भी रखना है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि सम टाइम कंट्रीज प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स मोर देन इट्स नीड इन होम कंट्री, सो सच सरप्लस प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सपोर्टेड। मतलब वो प्रोडक्ट जो हमको होम कंट्री में के लिए हमने बनाया, मीन्स अपनी कंट्री के लिए से बनाया, मीन्स कहें इंटरनल ट्रेड, तो उसके हिसाब से हमें कुछ एक्स्ट्रा करके सरप्लस गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना है, इतना कि हम उसे फॉरेन या अनदर कंट्री में उसको सोल्ड कर पाएँ। और दूसरे हमें ये भी देखना है कि हमें उस प्रोडक्ट की रेगुलर डिमांड मार्केट में रहे और मार्केट में डिमांड उसकी डिक्रीज़ ना हो, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना होगा ताकि हम उसको वेयर हाउस में रख सकें। और इन केस मार्केट में अगर कभी शॉर्टेज हो तो हम वेयर हाउस या स्टोर से निकाल के उसको मार्केट में उसकी डिमांड रेगुलर बनाए रखें, मतलब सेलिंग रेगुलर होती रहे। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा एक्सपोर्ट करने का ये है कि हम सरप्लस गुड्स को प्रोड्यूस करें। देखिए ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट के, कहने का मतलब कि हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे और क्यों कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट। तो हर चीज़ करने का या हर चीज़ पढ़ने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। आप बिजनेस पढ़ रहे हैं या आपने कॉमर्स लिया है तो क्यों लिया है, ये स्ट्रीम आपने क्यों चुना है, आगे आपने फ्यूचर इस लाइन में बनाना होगा इसीलिए आपने ये चुना। तो हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक्सपोर्ट के भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, ये देखने के लिए कि हम एक्सपोर्ट क्यों करेंगे या करेंगे तो किस बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सपोर्ट हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमारे रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। इससे पहले भी हमने आपको ये इस वर्ड का मतलब बताया हुआ है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किसको कहते हैं। मीन्स कि जो भी हमारी कंट्री में रिसोर्सेज हैं उसका सही तरीके से इन्वायरमेंटली और हमारे मार्केट एरिया, हमारे डिमांड, हर चीज़ को देखते हुए रिसोर्सेज जो हैं उनको हमें ऐसे यूज़ करना है कि मार्केट में डिमांड भी रहे, वो रिसोर्स भी यूज़ हो जाए, प्लस इन्वायरमेंट भी हमारा पलूट ना हो। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जहाँ भी आपको बोला जाए कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है कि प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो जाए और इन्वायरमेंट पे भी उसका रॉन्ग इफेक्ट या पल्यूट ना हो, ठीक है। तो इसलिए भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए अब आप कहेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एक्सपोर्ट से कैसे होता है, वो ऐसे कि जब हम इंटरनल ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज हम एक्सटेंट तक उसके एक्स्ट्रा उसको यूज़ करते हैं। ऐसे कि अगर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है और उसकी डिमांड रेगुलर मतलब हमें इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट हमें अपनी ही कंट्री में सिर्फ सोल्ड करना है,
तो शायद कि वो उस रिसोर्सेज का उतना बेटर यूटिलाइजेशन ना हो। हम सोचेंगे कि जितने रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री में तुमको बेचना है तो हम आराम से यूज़ करें, ठीक है। जिससे बहुत छोटा सा और थोड़ा सा वैसा वाला एग्जांपल हम आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डिश बनाई कोई चीज़ और आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, तो आप सोचेंगे ठीक है इतना तो सफिशिएंट है, जितना आराम से खाना, आराम से, ये जो आराम वाला है ना वर्ड, कि आराम से खाओ, ठीक है, कोई वो नहीं, कोई परवाह नहीं है। अब उतनी ही में कोई डिश आपने बनाई और बाहर कोई आपके गेस्ट आ गए। अब आप सोचेंगे कि हमको ऐसे चलाना है कि सबको प्रॉपर वे में आ जाए, कम भी ना पड़े और कोई चीज़ मतलब वेस्ट ना हो, ना ही कम पड़े। तो इट इज़ बेटर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इसको हम कहेंगे। तो उसी तरह जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज़ करते हैं। व्हेन वी यूज़ आवर रिसोर्सेज इन अ बेटर वे, इट इज़ नोन एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट इज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो ये तो हमने बताया हुआ कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर की कंट्री क्या करेगी, हमको पे करेगी, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उनको सोल्ड कर रहे हैं। तो वो पे करेंगे किस में, फॉरेन करेंसी में। तो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रिजर्व्स को भी अर्न करने के लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कंट्रीज कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय सेलिंग द गुड्स इन फॉरेन मार्केट एंड दिस कैन बी यूज्ड टू बाय कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरेन मार्केट। तो हमें अगर फॉरेन कंट्रीज़ में या बाहर की कंट्रीज़ या बाहर के मार्केट में अपने गुड्स को सोल्ड करना है और हमें फॉरेन एक्सचेंज कमाना है, तो हमें क्या करना होगा, बाहर की कंट्रीज़ में अपने गुड्स को सोल्ड करना होगा, मींस एक्सपोर्ट करना होगा। तो उससे क्या होगा, वो पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री अर्न करेगी। तो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। टू इंक्रीज़ नेशनल इनकम, जाहिर है जिस कंट्री में, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जिस कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स जितने ज़्यादा होते हैं उस कंट्री को उतना ही डेवलप्ड माना जाता है। तो कंट्री की नेशनल इनकम को भी इंक्रीज़ करने के लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप कहेंगे नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज़ होती है, वो ऐसे कि जब हम अपनी कंपनी या हम अपनी कंट्री की प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में सोल्ड करेंगे तो बाहर के कस्टमर्स या बाहर के लोग जो हैं हमारी कंट्री में इंटरेस्टेड होंगे। जब प्रोडक्ट उनको अच्छा लगेगा तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल या अपने ज़्यादा से ज़्यादा मनी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगी, नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज़ होगी। दूसरा तरीका ये भी है कि जब, जहाँ हमने ऑलरेडी आपको एग्जांपल पहले दिया था कि फॉर एग्जांपल अगर हम इन अ डे 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे और अब हमने बाहर के मार्केट में बेचा और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। अब हमको जो 50 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते थे और 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे तो उसमें 20 वर्कर्स हमारे लगते थे। अब हमें बाहर से ऑर्डर आया कि हमको इन अ डे हमको 100 यूनिट्स चाहिए। तो अब हमें क्या होंगे, वर्कर्स को ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो इट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट हमारा जनरेट हुआ। तो एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं जनरेट होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। व्हेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी इंक्रीज देन नेशनल इनकम विल ऑलरेडी इंक्रीज। ओके, तो एक्सपोर्ट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग नेशनल इनकम ऑल्सो। नेक्स्ट इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ये वही वाला टॉपिक आ गया, देखिए वही वाला अभी जस्ट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था कि कैसे एम्प्लॉयमेंट हमारा जनरेट होता है। तो इसमें आप अगर ना भी बुक से देखें तो आप जनरल लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं कि एक्सपोर्ट से हमारी जो सेलिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, वो इंक्रीज़ होता है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, सेलिंग इंक्रीज़ होगी, तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो वर्कर्स हैं उनके भी हमको नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। मीन्स कि नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो बी इंक्रीज व्हेन अ सेलिंग और डिमांड विल बी इंक्रीज ऑफ आर प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट। तो देन ऑफ कोर्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू हमारा कैसे इंक्रीज़ होगा। आपने देखा है कि जब हम अपने गुड्स या अपने सर्विसेज बाहर कंट्रीज़ में करते हैं तो जो दूसरी कंट्री होती है, मीन्स इंपोर्ट कंट्री जो होती है, मान लीजिए हमने यहाँ से अपने प्रोडक्ट यूएस सोल्ड किया तो यूएस हमारी इंपोर्ट कंट्री होगी और हमारी इंडिया कंट्री क्या होगी, एक्सपोर्टर। तो यूएस को हैवी टैक्स और हैवी टैरिफ्स पे करना होता है। अक्सर आपने देखा होगा कोई इंपोर्टेड गुड्स आप जब परचेज करते हैं तो हेवी टैक्स और हेवी टैरिफ्स लगते हैं। तो ये सब टैक्स और टैरिफ किसके अकाउंट में जाता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू में, है ना। तो वो जो गवर्नमेंट का जो खाता पर्सनल अपना रेवेन्यू होता है उसमें जाता है।
तो कहीं ना कहीं अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर के कंट्री में टैक्स और टैरिफ जो लगेंगे वो हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है उसमें आएगा वो टैक्स का अमाउंट, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू भी इंक्रीज होंगे। देखिए लिखा हुआ है द एक्सपोर्ट ट्रेड जनरेट रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेट टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। मीन्स अगर तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों को इन शॉर्ट हम कहें तो जीएसटी, जैसे यूटी जीएसटी, आईजीएसटी एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो ये सब हमारा जीएसटी का फॉर्म, जीएसटी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। तो ये सब किस में जाता है, वी नो गवर्नमेंट रेवेन्यू में, तो ये भी इंक्रीज होगा। एक ये भी ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया एक्सपोर्ट करने का। टू क्रिएट इंटरनेशनल प्लेस एंड कॉपरेशन, देखिए जहाँ मान लीजिए यूएस में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर की कंट्री मतलब बाहर की कंट्री प्रोड्यूस करती है और वो यूएस को अपना गुड्स या प्रोडक्ट सोल्ड करती है, तो वहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो बाहर की चीज़ों को टेस्ट कर पा रहे हैं जो उनकी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता। अब हमारी कंट्री भी उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट सोल्ड करे यूएस में जो वहाँ प्रोड्यूस नहीं होती, तो क्या है कॉम्पिटिटर की लिस्ट में हमारी कंट्री भी एक लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। इंटरनेशनल जो प्लेस है उसमें कहीं ना कहीं हमारी कंट्री भी एक नाम उसका इंक्लूड हो जाएगा और धीरे धीरे हमारी कंट्री भी एक ऐसा मेन कॉम्पिटिटर बन जाएगी जो अदर कंट्री को बीट कर सकती है। तो ये भी हमारा पॉइंट होता है, ये भी हम ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं एक्सपोर्ट को करने के लिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ट्रेड इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस एंड कोऑपरेशंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जाहिर है हम दूसरी कंट्री के साथ रेगुलर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते रहेंगे तो दूसरी कंट्री के हमारे साथ रिलेशंस या कोऑपरेशंस जो हैं वो अच्छे बने रहेंगे। तो रेगुलर जब एक ही कंट्री से हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, बाय करेंगे, परचेज़ करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो रिलेशंस हमारे अच्छे बन जाएंगे ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव हम लेके चलते हैं। तो ये देखा आपने, ये सारे इतने हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, बिफोर व्हेन वी आर गोइंग टू डू एक्सपोर्ट, देन वी हैव टू टेक दीज ऑब्जेक्टिव्स इन आवर माइंड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का, जो अक्सर पूछा जाता है, वो होता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर या इंपोर्ट प्रोसीजर। ये मान के चलिए कि दोनों में से कोई ना कोई एक आना ही आना है हर हाल में। फाइनल एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इट इज़ वेरी लेंथी एंड we will discuss it in next lecture. Okay, so that's all for today. If any student have any doubt, then ask to me.